આવા સંજોગોમાં રહીને એના વિશે સેન્સિટિવ બને, એની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, એમાં શું સાચું છે શું ખોટું છે એમાં કદાચ પછી પડી શકે, પણ એટલીસ્ટ કયા સફરિંગ છે, લોકો કઈ પરિસ્થિતિમાંથી, કઈ દુઃખમાંથી ને કઈ ભયંકર અન્યાયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, એના વિશે લોકો સેન્સિટિવ બની શકે, એના સોશિયો પોલિટિકલ સમજ લોકો સાથે રહીને વિકસાવી શકે. એના માટે ચોક્કસ તૈયારી હોય તો મને લાગે છે કે 10-15 એનજીઓઝ ગુજરાતમાં મળી શકે જે તમને એ અવકાશ આપી શકે, ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી શકે અને લોકો અને ત્યાં કદાચ લોકો આવીને રહી પણ શકે. કમસે કમ 3-4 વિદ્યાર્થીઓની જવાબદારી હું રહું છું. કોઈ આવવા તૈયાર હોય 10-15 દિવસ માટે તમારા સમયે તો ગામડાઓમાં રહી શકે અથવા ઇવન શહેરમાં પણ કોઈ એટલે જે તમને યોગ્ય લાગે, તમને જે રસ હોય એવા વિષયોમાં વધારે ઊંડાણમાં ઉતરીને લોકો સાથે રહીને શીખવા માટેનો અવસર એનો ઓપોર્ચ્યુનિટી ચોક્કસ આપી શકીશું. આપણે આ સંવેદના આર્ટિફિશિયલી કદાચ ઊભા નહીં કરી શકે. આ એક પહેલાં જે મેં સવાલ કર્યો હતો, જે સેન્સિટિવિટીની જે વાત, સેન્સિબિલિટીની વાત છે, એ કેવી રીતે આપણે સિવિલ સોસાયટીમાં રહીને એનજીઓઝ એ કરી જ નહીં શકે. આઈ થિંક વી નીડ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ. અને એ સિવિલ સોસાયટીમાંથી, આ નાગરિક સમાજમાંથી જ ઊભું થવું જોઈએ. અને આના માટેનો જે સપોર્ટ છે, ફાઇનાન્શિયલ હોય કે મોરલ સપોર્ટ હોય, એ બધું સમાજમાંથી જ ઊભો થવો જોઈએ. એનજીઓઝ એમાં મદદ કરી શકે, અમુક પ્રકારના સપોર્ટ એનજીઓઝ કરી શકે કે સિવિલ સોસાયટીમાંથી આ એક પહેલ જ્યારે થાય, સિવિલ સોસાયટીમાંથી જે ઇનિશિયેટિવ્સ ઊભા થાય છે એ ઇનિશિયેટિવ્સને બહારથી અને એક એઝ અ નાગરિક સંસ્થા તરીકે અથવા એક સિવિલ સોસાયટીની સંસ્થા તરીકે બહારથી એને સપોર્ટ કરવા માટેના એનજીઓઝને આપણે કન્વિન્સ કરવું જોઈએ. અને એ ડાયલોગ આપ જેવા લોકો અમારી સાથે કરીએ, એનજીઓવાળા સાથે, અને એ સેન્સિટિવિટી અમને આપવામાં આવે તો કદાચ યોગ્ય સપોર્ટ કરી શકે. નોટ ધ વે ઇન વિચ ઇટ ઇઝ બીંગ ડન નાઉ કે પાણી ઉપર ને ફલાણી ઉપર નાટક કરો, એ નહીં. સો મને લાગે છે કે એ ડાયલોગ કદાચ અમુક એનજીઓ સાથે અને નેશનલ લેવલ એનજીઓ સાથે કરવાની જરૂર છે. પ્રસાદભાઈએ જે પહેલો મુદ્દો કહ્યો એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે ને એમણે તૈયારી બતાવી એટલે મને વધારે એ લાગે છે કે એક તો અમે લાંબા ગાળા માટે આ વિચારતા હતા કે ભાઈ એક એક્સપોઝર થવું જોઈએ. હા, એ તમે ગામડામાં જાઓ કે ગરીબ બસ્તીમાં જે એનજીઓઝ કામ કરે છે ત્યાં જઈને તમે રહો અને લોકોના સવાલોને સમજો. પણ એ આપણે જે ફરીથી જે પહેલાં ચર્ચા બારાડી સાહેબે સવાલ ઉઠાવ્યો એમાંથી કરીએ કે એને એક ફોર્મલ સ્વરૂપે મંજૂર કરાવવું એ એક લાંબા ગાળાની વાત છે. પણ અહીં જેટલા મિત્રો બેઠા છે, માનો કે તમારી પાસે વેકેશનમાં પણ તમે આવી રીતે 15 દિવસ જવા તૈયાર છો, હા, તો એ જવાબદારી પ્રસાદભાઈ 3-4 જણનું કહે છે, પણ હું ખાતરી આપું છું કે અહીં બેઠેલા બધાને જવું હશે તો પણ અમે ગોઠવણ કરી આપી શકીએ કે તમે 15 દિવસ વેકેશનમાં કોઈ બી આવા જે હ્યુમન રાઇટ્સ કે આવા સવાલો સાથે જે સંસ્થાઓ કામ કરે છે એ સંસ્થાઓની અંદર તમે આદિવાસી વિસ્તારમાં જઈ શકો, તમે ગામડાઓમાં જઈને દલિતોના સવાલો ઉપર અભ્યાસ કરી શકો અને એમાંથી તમે આવતા વર્ષે નવું નાટક બી બનાવી શકો એ સવાલોને લઈને. આ એક ઓફર પ્રસાદભાઈની બહુ જ સારી છે. એટલે હું એટલા માટે અત્યારે એને ખુલ્લું મૂકું છું કે જો તમારી પાસે આ જ વેકેશનમાં જવું હોય તો બી તમે મને સંપર્ક કરી શકો, પ્રસાદભાઈને સીધો બી સંપર્ક કરી શકો. અમે લોકો ચોક્કસ એ રીતે તમને સपोર્ટ કરીશું. अब हम कॉन्क्रीट प्रोग्राम की ओर जाए. गुजरात के संदर्भ में जो अभी हम सोच रहे हैं इमीडिएटली कि कुछ शुरू कर दें, तो उस संदर्भ में जो 2-3 बातें हम लोग सोच रहे थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. और इसको अगर हम इसके ऊपर अपनी राय, अब हम थोड़ा फोकस करके जो प्रोग्राम बन रहे हैं उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि हम लोग कॉन्क्रीट प्रोग्राम बना सकें. एक सुझाव ये आया है कि जो हम लोगों ने सुबह में बात की थी कि एनजीओज़ जो गुजरात में काम कर रही है ग्रास रूट पर, उन लोगों को थिएटर के बारे में इतना डिटेल पता नहीं है. तो उस संदर्भ में हम लोगों ने एक ये सोचा है कि हम लोग कोई इस तरह का 1 या 1.5 दिन का कोई मॉड्यूल यानी कि कोई प्रोग्राम तैयार करें कि जो थिएटर एप्रिसिएशन टाइप हो, कि थिएटर को कैसे देखना चाहिए, थिएटर क्या कर सकता है, उसके बारे में एनजीओज़ के साथ हम लोग डायलॉग करें. और इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए कि कैसे हम लोग सेंसिटाइज करेंगे कि थिएटर की क्या क्या संभावना है. तो सिर्फ ये नहीं है कि ये
मेरा या अदिति बहन का काम है, इसमें आप लोग भी शामिल हो सकते हैं और आप हो सकते हैं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग इसमें भी शामिल हो और हम लोग इस तरह का एक डायलॉग शुरू करें एनजीओज के साथ। तो धीरे धीरे जो हम सवाल देख रहे थे वो थोड़ा कम होना, संभावना है कि कम होगा। મીડિયા સેન્સિટાઇઝેશન પણ કરવું જોઈએ, કેમ કે ટેલિવિઝનના ઉપયોગ અંગે ઘણી બધી ગેરસમજ છે આ એનજીઓની અંદર કે આનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો. એટલે એટલા માટે મારું તો સજેશન કદાચ એવું થાય કે કોમ્યુનિકેશનની કઈ મેથડ વિશે આપણે આપણે એ કરી શકીએ. वो रखने की कोई ज़रूरत तो है, महाराज साहब कह रहे हैं वो ज़रूरत है, लेकिन उसका एंगल जो है या उसका फोकस जो है वो थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. કારણ કે એનજીઓ ને થિયેટરનો પાવર તો ખબર છે કે આમ એ લોકો 50 માણસ ભેગા નથી કરી શકતા ને નાટકો કરીને 5000 ભેગા થઈ જાય છે. પાવર જાણે છે પણ એની જરૂરિયાત, એના ઉપયોગ એ વિશે એમણે બહુ જ સ્પષ્ટતા કેળવવાની જરૂર છે. અને થિયેટર ગ્રુપ સાથેના સંબંધોમાં પણ સ્પષ્ટતા કેળવવાની જરૂર છે. ક્યાંક પાવર અને ઘણું બધું શેર કરવાની પણ જરૂર છે. ક્યાંક આપણને પણ ઇક્વલ લેવલ ઉપર, જે સેકન્ડરી લેવલ ઉપર હંમેશા રાખે છે એની જગ્યાએ ઇક્વલ લેવલ ઉપર પણ થિયેટરને મૂકવાની જરૂર છે. એમના કામમાં એની ગણતરી કરવાની જરૂર છે, એમને સામે કહેવાની પણ જરૂર છે. એટલે મુદ્દાઓ કદાચ થિયેટર અપ્રિસિએશનના નથી મને લાગે છે. મુદ્દાઓ થિયેટરને હવે પોતાનો હક અપાવવાના છે આખા સેક્ટરમાં. મને બહુ જ એવું પરસિસ્ટ લાગે છે કે એ જરૂરિયાત છે. એટલે હવે એ કઈ રીતે કરી શકાય એ થોડુંક. તમારા મુદ્દા સાથે અદિતિબેન મારું એક તો એ છે કે એક રીતે એનજીઓસ જુએ છે, પણ એ સોસાયટી જે રીતે થિયેટરને જુએ છે એ જ રીતે એ લોકો જુએ છે. એથી વધારે થિયેટર વિશે એમને ખબર નથી. હા 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 એટલે let us not idealize the NGO sector, okay? એટલે એમાં NGO સેક્ટરની અંદર પણ ખરાબ છે, સારા છે, મીડિયોકર છે, એવરેજ છે. જે બહાર છે એ NGO સેક્ટરમાં પણ છે. અને NGO સેક્ટરમાં પણ એવું બને છે કે there are people who come in merely because there are no options otherwise. So એ લોકોને માટે, those who are starting their careers, એ લોકોને આપણે એ અપેક્ષા ના રાખી શકીએ કે એ લોકો આને કમ્પ્લીટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ પણ કરે, એ સમજે અને અપ્રિશિએટ પણ કરે. કદાચ થોડો સમય ત્યાં રહેશે એનજીઓ સેક્ટરમાં તો અપ્રિસિએશન થોડું ઘણું આવશે, પણ એ પણ કમ્પ્લીટ આવશે નહીં. એટલે આઈ ઓલ્સો થિંક, એટલે ડેફિનેટલી આઈ અગ્રી વિથ યોર પોઈન્ટ કે એક જે સ્થાન અને સ્ટેટસ અપાવવાની વાત છે એ ચોક્કસ લેવી જોઈએ. અને આઈ સર્ટનલી સબમિટ દેટ as of now the NGO sector has not given it the due respect that it deserves. પણ એક જે અપ્રિસિએશન અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની વાત છે એને કદાચ આપણે થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્સ પણ આપવું જોઈએ. આઈ ડેફિનેટલી थिंक दैट बीजो एक जो दूसरा एक प्रोग्राम तय हो रहा है वो है कि समर वेकेशन वाला जो प्रसाद भाई ने बताया था, मुझे लगता है कि इसको इसी साल से हम लोग शुरू कर सकते हैं. कुछ बातें हम लोगों ने की है जिसमें एक ये है कि एक तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों में से, या जो सिर्फ मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, युवा रंगकर्मी भी हो जो थिएटर नहीं भी पढ़ते हो, उस तरह के आपके दोस्त हो, उनके लिए भी ये कोई ये नहीं है. लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि इसको थोड़ा ठीक ठाक हम लोग प्लान करें कि जिसमें आप लोगों के साथ थोड़ा पहले एक दिन या आधा दिन हम लोग बैठ कर कि किस तरह के सवाल है, किस तरह के एनजीओज है, क्या काम करते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं वो, तो उस तरह की थोड़ी एक आधे दिन की या एक दिन का हम लोग एक ये मीटिंग कर ले, जिसको एक अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एक ओरिएंटेशन आप लोगों का हो जाए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या हालात है, किस तरह का काम हो रहा है, क्या सवाल है, और फिर आप जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. और फिर आने के बाद भी एक दिन एटलीस्ट हम लोगों को बैठकर इसको पूरी जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोग लेकर आए हैं उसके बारे में हम लोग, क्योंकि ये हम इस तरह का प्रोग्राम देखते हैं कि जिसमें आप लोगों को भी नया कुछ जानना सीखना मिलता है और साथ साथ हम लोग एनजीओज को भी उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें दे सकते हैं कि भाई ये फीडबैक है, ये लोग गए थे उनका और ये नज़रिए से देखा है. कॉलेज थिएटर कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी बातें हुई है, तो उसको हम अभी
कॉन्क्रीट एक्शन प्रोग्राम में नहीं लेंगे, क्योंकि लेकिन जो सुझाव हिमांशु जी का था उसके साथ मैं इसको लिंक करता हूँ कि वो कहते थे कि अगर हम अगले आने वाले 6 महीने में फिर से गुजरात के इस तरह के जो थिएटर के लोग हैं, जो एनजीओस के लोग हैं, उन लोगों के बीच में एक डायलॉग का इस तरह का कोई 1 या 2 दिन का कन्वेंशन कर पाए कि जिसमें से हम लोग ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें और ज़्यादा डायलॉग करके एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम निकाल पाए, तो उस तरह की हमारी तैयारी है कि नहीं, ये एक तीसरा जो कॉन्क्रीट प्रोग्राम निकल के आ रहा था उसके ऊपर हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए कि क्या हम लोग आने वाले 6-7 महीने में फिर से, बहुत टाइम जाने से वो जो बता रहे थे वो यही था कि अगर 1 साल निकाल देंगे तो फिर ये जो गर्मी अभी आई है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम गुजरात के ही है, ज़्यादातर यहाँ गुजरात के साथ ही बैठे हुए हैं, तो हम लोग तय कर सकते हैं कि आने वाले जून या जुलाई या अगस्त तक लेटेस्ट हम लोग अगर गुजरात में कुछ कर, मैं इसलिए जून जुलाई अगस्त बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की छुट्टियाँ होगी तो आप लोग ज़्यादातर जून से ही फिर कॉलेज में आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका सुझाव है कि उससे भी जल्दी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो सभी लोग, सिर्फ युवा साथी नहीं, युवा साथी भी अपना अभिप्राय दे सकते हैं, बाकी के जो थिएटर वाले हैं वो लोग भी अपना। इस बार ये 4 दिन में एक कमी तो हम लोगों ने देखी है कि एनजीओ से बहुत कम लोग आए हैं, तो ये भी एक नया ये है कि अगर फिर से हम लोग प्लान करना चाहते हैं तो उस तरीके से थोड़ी कोशिश भी ज़्यादा करें कि एनजीओस के लोग ज़्यादा, और गुजरात बेस्ड होगा तो आसान भी होगा हम लोगों के लिए संपर्क करना और उनको शामिल करने में। कुछ थिएटर ग्रुप्स भी जो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर थिएटर कर रहे हैं गुजरात में, उस तरह के छोटे मोटे काफ़ी ग्रुप्स हैं, और उस तरह के एक्टिविस्ट भी हैं कुछ कि अपने अपने एरियाज़ में छोटा सा एक ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस तरह के साथियों को भी इसमें शामिल करने की हम कोशिश करें, ताकि एक तरीके से हम पूरा एक असेसमेंट कर पाए कि भाई क्या हो रहा है सच में, और एक हम लोगों के बीच में एक डायलॉग भी शुरू हो। तो ये दोनों हैं जिसमें आप लोग तो युवा साथी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो रहेंगे, और सिर्फ थिएटर स्टूडेंट्स नहीं, इसमें हम युवा रंगकर्मियों को भी शामिल कर सकते हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में या कहीं भी जो लोग काम करते हैं, उस तरह के साथियों को भी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी ये रखते हैं, फिर इसकी एक कमेटी बना देंगे हम लोग, तो उसी में ज़्यादा दोनों काम ऐसे हैं कि जिसमें तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, और समर वेकेशन वाला जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप लोग अगर आज बताए कि कभी, यानी कांटेक्ट मेरा और परसिस बेन का आप लोग ले लीजिए। मुझे लगता है कि हम लोग अगर नेक्स्ट कन्वेंशन इस तरह से सोच रहे हैं गुजरात में, तो उसी में जो बातें अभी हम लोगों ने की है और अगले साल से जो आपकी कॉलेज में या आपके आसपास की कॉलेजेस में आप लोग कर सकते हैं, या यूथ फेस्टिवल, और ये काफ़ी सारे सुझाव आए हैं, उस तरह के प्रोग्राम को थोड़ा ज़्यादा कॉन्क्रीटाइज हम लोग कर सकते हैं। इवन एनजीओस के साथ भी, ये तो एक एक्सपोजर वाला हम लोगों ने तय किया है, लेकिन एनजीओस के साथ कैसे लिंकेजेस कर सकते हैं वो भी, अगर एनजीओस के ज़्यादा साथी हैं तो हम लोग उसमें भी कई सारे सुझाव आ सकते हैं और उसको एक कॉन्क्रीट स्वरूप दे सकते हैं। एक जो बड़ा सवाल अभी भी बाकी रहा है, सुबह मैंने छेड़ तो दिया था लेकिन फिर हम लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि वो जो आपसे बात तो करनी है, लेकिन क्या नेशनल कन्वेंशन इस तरह का होना चाहिए नेशनल लेवल पर और लोगों को शामिल करके नेक्स्ट ईयर कुछ करने, इसके बारे में अपनी अपनी राय आप लोग रख सकते हैं। एक हमारे कोई अभ्यासक्रम ऐसे सिखाते नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक व्यापक दृष्टिकोण भी होगा, और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है, माने कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट का सामना भी कैसे हो रहा है। थिएटर स्कूल नहीं है, लेकिन कई सारे ग्रुप्स है जो कितने सारे नाटक करते हैं और जिसमें राजनीतिक और सामाजिक सरोकार उनका प्रतिबिंबित होता है, तो ये कैसे होता है वो भी हम देख पाएंगे। उसमें कोई एक ऐसा प्रावधान हो कि हमें कुछ नाटक देखने को मिले, और मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए। और अगर हिमांशु जी कर रहे हैं तो अच्छा है, दूसरे साथी भी आएंगे, जुड़ेंगे, जुटेंगे, तो ये अपने आप में कंट्री वाइड क्लासरूम का एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन होगा। वहाँ के रंगकर्मियों के साथ, वहाँ के थिएटर स्टूडेंट्स के साथ अपना जुड़ाव बनेगा। तो अब हमें चाहिए कि हमें सही में विश्व मानवी होना है, ग्लोबलाइज नहीं लेकिन विश्व मानवी। मुझे लगता है कि एक तो एटलीस्ट गुजरात के बारे में, क्योंकि हम अगर मई से जून के बीच में अगर फिर से मिलना चाहते हैं, और ये जो समर वेकेशन एक्सपोजर वाला भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसका भी कुछ अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है करना है प्लानिंग, और थिएटर एप्रिसिएशन वाला जो
प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। मुझे लगता है कि एक वर्किंग कमेटी हम लोग गुजरात की बना लें कि जो ये प्रोग्राम को आगे ले जाए। एक तो बहुत इनफॉर्मली हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, कैसे करेंगे, यानी कोई हमारे पास रास्ता नहीं है इसमें, लेकिन कैसे, यानी कमेटी कैसे बनाए, ये एक ये है, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन भी हो सकता है यहाँ जो भी हम लोग हैं उसमें से। हाँ, कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने जो बताया वही एक दिक्कत तो मुझे दिखाई देती है कि एनजीओज में से सिर्फ परसीज बहन और प्रसाद भाई दो ही है और कोई यहाँ है नहीं। हाँ, लेकिन अगर एनजीओज के साथ भी हम कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं या तो इस तरह का एप्रिसिएशन प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ से भी कोई एक आध लोगों को और हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि उनकी रिक्वायरमेंट भी हम लोग समझ पाए और थोड़ा हम ठीक से प्लानिंग कर पाए। क्योंकि अभी तक के जो 2 प्रोग्राम हमने तय किए हैं वो दोनों एनजीओज को ध्यान में रखते हुए किया है हम लोगों ने, इसलिए उनके लोगों को भी शामिल करना ज़रूरी है। लेकिन थिएटर में हम लोग यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो इसी में से हम लोग तय कर सकते हैं 3-4 लोगों की कमेटी। बहुत बड़ी कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई पावर भी नहीं है, ये सिर्फ काम आगे ले जाना है और 6 महीने तक में एक कन्वेंशन तक इसको ले जाना है, फिर हम कोई प्रोसेस सोच सकते हैं उस कन्वेंशन में। અહીંયા આપણી પાસે કિરણભાઈ અને આશુતોષ બે શિક્ષકો છે, મેં બેમાંથી કોઈ એક શિક્ષક વોલન્ટિયર અગર કરે આ કાર્યકારી કમિટીમાં, હા, ગુજરાત કોલેજ અને બીજી કોઈ કોલેજમાંથી બી આવો ને બે, વલ્લભ વિદ્યાનગર કે પાલનપુર। હા, નામ આ રીતે છે: અદિતિબેન, પરસીસબેન, હિરેન, કિરણ ભોકડી, આશુતોષ, ચિરાગ, વૈભવ। એક ગર્લ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એમએસ અથવા ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી આવશે અથવા 2 બહેનો આવશે તો આપણે બંનેને ઇન્ક્લુડ કરી લઈશું, બરાબર? એક ખાલી છે જગ્યા, બારાડી સાહેબ અને દેસાઈ સાહેબ। My feedback is not very organized. Actually, I have got a lot of inputs from this seminar, from this discussion session. So therefore, I'm not very organized, but I'm trying to say what I have felt. First of all, this action plan sounded very interesting to me because I am asked to speak in many conference seminar, but they only organize this kind of things purely to cater their purely to serve their academic interest. And since in our country the academia and the ground level reality, there is hardly any connection. Very often we don't see any connection. Therefore, a conference on purely on academic interest doesn't really satisfy me. And here I see a concrete action. A triangle is trying to work. A triangle where we see students, teachers, and the theatre activists. I think if this triangle works properly, then it can contribute a model to the whole country as to how the institution, theatre in the institution can be politicized. I love romanticizing optimism. I'm telling you, because if I have to dump my frustrations, there is no point. There is no point dumping frustrations. I clearly believe that even within the student community there are enough potentials. They can think politically. They have a lot of questions. If you are connected to a collective, then only that collective action can lead to an introspective action. So therefore, I believe that I want to be optimistic, because if this triangle works, then this will be a collective action, and this collective action will certainly lead to an introspective action. Therefore, lot of students, maybe if not lot, at least a few, if they accept this introspective action with courage, I think the leadership can evolve. So we should be optimistic and we should try to see that this triangle works. ये समय बहुत कठिन समय है और मुझे लगता है कि समय हमेशा कठिन रहता है। इस तरह से हम अपनी इन सब कठिनाइयों के बीच में अपने थिएटर के माध्यम से अपनी बातें कहते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और जो नौजवान थिएटर के उसमें क्षेत्र में इस समय आए हैं, सक्रिय हुए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करूंगा कि वो इस क्षेत्र में लाख परेशानियों के बावजूद टिके रहेंगे। धन्यवाद।
कि 4 दिन पहले हम जब ये सब प्लान आउट था हमारे मन में, तब मेरे मगज में थोड़ा सा एक विचार आया था ये सब्जेक्ट को लेकर कि क्या ये होगा 4 दिन का, बाद में क्या होगा। बाद में तो मैंने सोचा था सब कुछ नहीं, खाना पीना खाएंगे, चाय पी के सब घर ले जाएंगे और सब मजे मार के घर। तो ऐसा मेरे मगज में था कि ऐसा ही होता है सब पर मैं हिरेन सर का बहुत बहुत मतलब तहे दिल से आभारी हूं कि एक एक्शन प्लान मतलब किया गया और आई कांट बिलीव कि ऐसा ये सब इतना जल्दी और 4 दिन में हो गया। पर जो भी हमारे लिए बाहर से आए हैं वो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और ये थैंक यू फॉर्मेलिटी नहीं है, पर इसीलिए मैं थैंक यू कह रहा हूँ कि हम लोग गुजरात में जब काम करते हैं तो हमें सिर्फ गुजरात के बारे में पता होता है। अभी हम लोगों को इंटरनेशनली पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, नेशनली पूरे इंडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में भी सब पता चला है। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमें बहुत ही जानने को और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बढ़िया एक्शन प्लान बनाया गया है जो इसके इस 4 दिनों के बाद 4 साल या 40 साल तक चलेगा, ऐसा मुझे मानना है। थैंक यू। ગઈકાલે જ આવ્યો છું એટલે આખો સેમિનાર હું એટેન્ડ નથી કરી શક્યો, પણ અહીંયા આવીને એવું લાગ્યું જેમ મેડમે ગઈકાલે કહ્યું હતું કે આર્ટિસ્ટ ખાલી કામ કરીને છૂટો નથી થઈ જતો, ચર્ચા પણ એની કલાનો જ એક ભાગ છે। એટલે જનરલી હું પોતે પણ એટલે હું માનતો હોઉં છું કે આર્ટિસ્ટ ખાલી એક્ટર ખાલી કરી જાણે, ચર્ચા એ બધો એનો વિષય નથી। પણ અહીંયા આવીને એવું લાગ્યું કે એ પણ એ જરૂરી છે, ત્યારે જ એ કામ એટલું સારી રીતે થઈ શકે છે। અને આ અનુભવ મને મળ્યો એની માટે હું સૌનો આભારી છું। થેન્ક યુ। પરંતુ અહીંયા 4 દિવસના અંદર મને જે કંઈ જાણવા મળ્યું છે અને આટલો મારા અંદર એટલો તો કોન્ફિડન્સ આવ્યો છે કે કંઈક હું કરી બતાવીશ અને ક્યારે પણ જો મારી જરૂર પડે તો હું પગભર ઊભો રહીશ। થેન્ક યુ। जो हमारी कमी है वो आप लोगों ने महसूस कराई, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और पूरे विविनगर ग्रुप से मैं आभार मानता हूँ। सेमिनार में तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो सब बातें करते हैं फिर सबकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे ऐसा ही था स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा ही लगा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ आके जो देखा मैंने कि नहीं, ये बैटरी लाइफ टाइम के लिए अब चार्ज हो गई है। अब मैं कुछ कर पाऊँगा, जो हमने जो ये स्टार्ट किया है उसके लिए मैं भी बहुत कुछ करूँगा। और जो मैं सब इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो नहीं जानता था, जो मैं नहीं कुछ जानता था कि थिएटर के बारे में, वो मुझे यहाँ आके जानने को मिला और सबका आभारी हूँ मैं। थैंक्स टू ऑल। મારો ઉદ્દેશ એવો હતો કે હું ડ્રામા ડિગ્રી પાસ આઉટ કરીને બહુ સારું કંઈક કામ કરીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ, પણ આના ઉપરથી હું એવું આ સેમિનાર અટેન્ડ કર્યા પછી હું એવું સમજી શકી છું કે મારે કઈ દિશા તરફ પ્રેરાવું એ ગોલ મારો નક્કી થઈ ગયો છે। મને એ જાણવા મળ્યું કે ખરેખર ડ્રામામાં જો હું એકલો જ નથી સંકળાયેલો, મારી સાથે મારો સમાજ, જે મારો મોટો સમાજ કહેવાય, એ અત્યારે મારી પાછળ પણ છે। સંજય ગાંગુલીએ જે વાત કરી, જે રીતના જે નાટક, જે ફોરમ નાટકની નાટક પછી જે ડિબેટ ચર્ચા પદ્ધતિ રાખી, એ ખરેખર લોકો સુધી પહોંચી શકશે એમ। જે મેસેજ આપણે લઈને જઈએ છીએ, જે મેસેજ આપણે આપવા માંગીએ છીએ, લોકોના વિચાર બદલવા માંગીએ છીએ, ખરેખર રીતના આ દ્વારા બદલી શકશે। आज जो लास्ट डे है और आगे जो 3 दिन का जो सेशन हुआ सभी, उस पर से एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो कल जो सिखाया था फॉरम थिएटर के बारे में, वो मैंने पहली बार सुना है फॉरम थिएटर, और वो मुझे एक माध्यम एक अच्छा लगा फॉरम थिएटर, कि लोगों से अपनी बात किस तरह से कही जाए। अभी तक मैं स्ट्रीट प्ले जानता था कि इस तरह से होता है, लोगों को अपनी बात पहुंचानी है, लेकिन एक फॉरम थिएटर वो ऑडियंस को अंदर एक्टिंग में भी इंक्लूड करती है अपने साथ, और इस तरह से बात पहुंचाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा और सेमिनार मुझे बहुत अच्छा लगा सही। को ये कंसल्टेशन बहुत पसंद है। I'm very glad to be here. I wish my Hindi were better so that I could have understood more, but various people were very helpful in translating for me. I'm from the United States, and in college I did a lot of theater and was very interested in how theater can be used for social change. And so it's wonderful for me to be here and to hear about what's happening in the Indian context and what kind of work you are all doing. It's incredibly encouraging, and I'm so happy to make these connections with all of you.
I'll be here for the next 3 months until the end of March, and I'd ask that you please keep me informed about what you are doing, your performances, your work, because I want to learn as much as possible while I'm here, and I think the work that you're doing is very important. So please keep in touch. Thank you. ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी बहुत इसमें से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, ये एक अच्छी तरीके से आप लोगों के आने से ये प्रोग्राम में एक नई जान आ गई है। और जो एक्शन प्रोग्राम हम लोगों का बन पाया है उसमें भी आप लोग इसी तरीके से इतने ही उत्साह से शामिल रहेंगे, ये अपेक्षा है। बाकी जो भी साथी बाहर से आए हैं, गुजरात बाहर से भी हिमांशु जी 4 दिन से रुके हुए हैं, इवन मंगई भी, वो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले दिन कमल मित्र चिनोय और अनिल चौधरी भी आए थे, प्रसन्ना जी आए थे, त्रिपुरारी जी आई थी। ये सभी साथियों का भी इसमें एक ये रहा कि जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हम जिस तरह से चाहते थे अच्छी तरीके से हम लोगों ने 4 दिन गुजारे हैं। काफ़ी कुछ सीखा है हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी, और साथ में मिलकर, यानी हम लोगों ने जो ये प्रक्रिया की है, जो भी उपलब्धियां हम देख रहे हैं उसमें सीई और नेहरू फाउंडेशन का भी एक माहौल का भी एक रोल रहा है हम लोगों के लिए। तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े कई सारे लोग हैं कि जिन लोगों ने एक या दूसरी तरीके से काफ़ी मदद की है। जो सवाल आप लोग 3-4 दिन से पूछ रहे थे वही एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है, और हम लोग हमेशा ये करते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम हो पाया उसके लिए जो एक चीज़ ज़रूरी होती है, बाकी काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो फंड ज़रूरी होता है कि आप कैसे इस प्रोग्राम को करेंगे, इसके लिए खर्चा कैसे करेंगे। हम 2 संस्थाओं के आभारी हैं। एक संस्था के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं जिन्होंने इसको ये कार्यक्रम करने के लिए सबसे ज़्यादा फंड दिया था, राजेंद्रन जी, जो ये हिवोस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है नीदरलैंड का, उन लोगों ने ये पूरे प्रोग्राम के लिए इन्होंने दिया था। राजा, आप जरा हाथ तो उठाइए एटलीस्ट। थैंक्स। और दूसरी भी नीदरलैंड की संस्था है CMC, जिसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं है, लेकिन CMC ने एक्चुअली जब हम लोगों ने ये साल के शुरुआत में सोचा था कि इस तरह का कुछ कार्यक्रम इस बार करें, तब CMC ने कम पैसे दिए थे, लेकिन एक इनिशिएटिव और प्रोत्साहन जरूर दिया था कि नहीं, आप इस तरह का प्रोग्राम जरूर करिए। तो हम CMC का भी धन्यवाद अदा करते हैं। पेप्सी कोला, कोका कोला, तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला, कोका कोला, तरह तरह का कोला, पर पीने का पानी गायब जब भी नल को खोला, पर पीने का पानी गायब जब भी नल को खोला, मिले ना बूंद भी पानी, 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 जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, अरे मनमोहन का पोता पढ़ने जाए देहरादून, मनमोहन का पोता पढ़ने जाए देहरादून, बाकी लोग चरावे भैंस, बाकी लोग चरावे भैंस, बाकी लोग चरावे भैंस, बाकी लोग चरावे भैंस, जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, और गेहूं का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा, गेहूं का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा, सबको सहना होगा कि सबको सहना होगा, कि सबको सहना होगा, कि सबको सहना होगा, जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। अरे मनमोहन ने भारत बेचा, लालू बेचे बिहार, मनमोहन ने भारत बेचा, लालू बेचे बिहार, और शिवसेना ने दौड़ा दी है एनरॉन की कार, शिवसेना ने दौड़ा दी है एनरॉन की कार, और बीजेपी ने दौड़ा दी है एनरॉन की कार, बीजेपी ने दौड़ा दी है एनरॉन की कार। दलाली धंधा है इनका, दलाली धंधा है इनका, दलाली धंधा है इनका, दलाली धंधा है इनका, जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और गंगा जी के घाट पर
पर बैठा एक इंसान, गंगा जी के घाट पर बैठा एक इंसान। और हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था।